So, Namaskar. It's really a privilege to sit with such luminaries, and all the more it gives, it's a matter of happiness that they are from an institution which is supported by the Ministry of Culture. National School of Drama is an autonomous institution under Ministry of Culture. And so just to see, stalwarts coming out of it is very, very heartening. So when we were thinking about, what topic we should decide for this discussion during Waves, because this is more about films, it is more somehow centered around more towards the film world being held in Mumbai. We thought, why not theatre? Because theatre is the original form of entertainment. If you see one of the first forms of entertainment, Natya Shastra by Bharat Muni, which has now been recently inscribed by UNESCO in the Memory of Word Register. So that's a very, very big achievement which has been done. So Natya Shastra is supposed to be the basis of all forms of entertainment, all forms of rasa. So that is why we thought, that while there will be so much of focus, on the films as well as, different other forms of entertainment, it's high time we spoke about the form of entertainment which is very, very basic to a human being. Even as a child, if, we throw a tantrum, parents bolenge, kya natak kar rahe ho? So, it encompasses all sorts of human emotions. And especially National School of Drama will play a very pivotal role. It has been playing a pivotal role, but we felt that it is now a high time that we give theatre its actual due. It should not get lost within, the cinematic world, and what steps we can take forward. And that is why not only it will be a learning session for me also, because as a policymaker, I would like to hear from the alumni. In fact, all four are NSD alumni, and who have now joined. Some of them are working in the field of films, as to how we can take theatre forward. So you want to take it from here, or should I? Just tell us what is the. You have kept this इस session का idea है theatre 2.0. एंड चित्रंजन को मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोड्यूस कर दे, एनएसडी के उस काम के बारे में इंट्रोड्यूस कर दे, देन विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट. So as ma'am said that it all started with Natya Shastra, and I don't know whether you are aware of it or not, but 3,000 years back this great treatise called Natya Shastra was written in our country. And conveniently, many Western institutions, they, while talking about the evolution of theatre, they very conveniently don't, talk about this. But it's a historical fact. And the first ever play was also happened in this country called Samudra Manthan. And Bharat Muni, who wrote Natya Shastra, he did it with his 100 sons. So if you talk about Broadway and other plays where you get a massive production in front of you, and people call it epic plays. So actually epic plays also started here in this part of the world. And ये जो 2.0 है उसका रीज़न ये है कि हमें ये लगता है कि जो दुनिया को समझ गया वो नाटक करता है, और जो दुनिया को नहीं समझ पाया वो नौटंकी करता है. सो हम ये मानते हैं, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने या राइटर ने या इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि थिएटर इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ये पहले नाट्यशास्त्र में लिखा गया है एंड कोई बात नहीं करता, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसलिए शायद हम बात नहीं करते हैं, और अवेयरनेस भी नहीं है. अब लोग बात करते हैं थिएटर थेरेपी की. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट नाट्यशास्त्र में श्लोक में कहा गया है नाटक जो है वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उसमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों है. सो इट इज़ समथिंग, नाट्यशास्त्र was aiming at creating something which is only for the people, of the people, and by the people, and for the betterment of the entire society. So now Theatre 2.0 is actually to leap forward and to take this to different segments of society. Every segment of society should be aware of theatre. क्यों?
क्योंकि नाट्यशास्त्र जब लिखा गया था, मैं बहुत ब्रीफली बोल रहा हूँ, नाट्यशास्त्र जो लिखा गया था, जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कि वहाँ पे बात हुई थी कि अराजकता बहुत हो गया, एनर्की बहुत हो गया, घमंड बहुत लोगों को आ गया, ईगो बहुत आ गया, सेल्फिश हो गए लोग, इनको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि 4 वेद लिखने के बाद, अथर्ववेद लिखने के बाद, अथर्ववेद तक जाते जाते हमारा समाज जो है वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करे, जीरो और डेसिमल, पाए और चरक सुश्रुत, मेडिसिन एंड सर्जरी, सो बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आ चुका था। बट लोगों को ऐसा लगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान बिना संस्कृति के हो नहीं सकता, इसलिए नाट्यशास्त्र लिखा गया। और कारण ये था कि समाज का जो डिसऑर्डर है उसको एड्रेस करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ काउंसलिंग विच शुड हैपन थ्रू थिएटर, विच इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कल्चर। आज हम जब AI और जो तमाम चीज़ें, अर्बन लाइफ, ग्लोबल वार्मिंग, तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई सेल्फिश है, हर कोई सोचता है कि मेरा कुछ हो जाए, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एनर्की है, सब कुछ है। तो यहाँ पे थिएटर 2.0 का मतलब है टेकिंग थिएटर टू एवरी segment of society, be it the school children or the senior citizens. So we at NSD, we have started making efforts to take it to different segments. We worked with the red light workers and ended up doing a production. We worked with the transgenders, with senior citizens, with school children, with street urchins. Last year we did a workshop with street urchins. And we are aiming to do it with even the judiciary, the legislature and the policy makers, so that जो महात्म्य है नाट्यशास्त्र का, जो मेन एम था कि इट इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, इट इज़ थ्रू एंटरटेनमेंट, बट इट इज़ नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ नाट्यशास्त्र। सो इसलिए इसको हम हर घर थिएटर के स्लोगन से अभी NSD में करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर समिट, जहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट मीडिया एंड सिनेमा, मेनली सिनेमा, OTT, दिस एंड दैट। बट अगर हम बात करें तो नाटक जो है वो, जैसे मैंने कहा कि जो नाटक को समझ गया, समाज को समझा, वो नाटक करेगा, जो नहीं समझा वो नौटंकी करेगा। तो मीडिया में हम कर क्या रहे हैं, सिनेमा में कर क्या रहे हैं? एंड ऑफ द डे वी रीड दैट ऑन द स्क्रीन प्ले इज़ बाय सो एंड सो। सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्ले विच इज़ हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। इट इज़ अ रिकॉर्डेड एंड मैनिपुलेटिव मीडियम, जिसको हम आराम से मैनिपुलेट करके थ्रू एडिटिंग एंड थ्रू मैनी साइंटिफिक जो मतलब टेक्निकलिटीज़ हमारे पास है, उसको करके हम प्रेजेंट करते हैं। नाउ थिएटर क्या वैसे ही होगा, या टेक्निकलिटीज़ जो आए हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको लेके साथ में चलें? सो 2.0 थिएटर की जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें वी शुड गो फॉर अ मैरिज बिटवीन so-called blunt theater or real theater or natural theater in its most natural form and the technicalities. तब जाके हम बहुत सारी जगह पे पहुंच पाएंगे। वेरी थैंक यू। तो मैं ये पैनल के लिए थ्रो करता हूँ क्वेश्चन कि थिएटर, हम में से ज़्यादातर लोग दोनों तरह से थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिशनल थिएटर का मेथड है स्टेज, और उसके अलावा जो आप कह रहे थे स्क्रीन प्ले से जुड़ा हुआ जो आज का मैनिपुलेटेड मीडियम है। तो हाउ डज दिस थिएटर 2.0 आप लोगों के लिए कैसे रेलेवेंट है? जैसे इंडिया के बारे में हम बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है ना, मतलब हम परफॉर्मेटिव, हमारी रिचुअल्स है, उसमें भी थिएटर हमको दिखाई देता है। तो और आज जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके बारे में वेव समिट हो रहा है, जिसके बारे में सारी बातें हो रही, तो इसमें आपका थिएटर से रिलेशनशिप कैसे बना रहता है, और थिएटर उस जगह पे आपको पहुंचने के लिए कैसे अच्छे से सपोर्ट कर सकता है? तो ये ओपन क्वेश्चन है, आप जिसको जैसे भी जवाब देना है दे सकते हैं। After about 35 years in cinema, also because जब मैं NSD से ग्रेजुएट हुई तो सडनली TV आ गया था पहली बार, और पहले सीरियल्स हुए थे, तो अचानक हमारी रेपर्टरीज सब बंद हो चुकी थी, तो थिएटर की गुंजाइश उस समय ख़त्म हो गई थी। तो एज अ यंग एक्ट्रेस फ्रॉम NSD in 1987, I wanted to join the theatre, but there was no theatre because suddenly TV was a new phenomena. And it was that TV will eat it up, Now, after 37 or 8 years back, I have been continuously attached to the theatre. What NSD जैसा एक संस्था जो है, जो हमें पूरी तरह से, और मैंने NSD ज्वाइन किया MA इंग्लिश के बाद। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लगता है कि नाटक करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है।
ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज नाटक एक ऐसी गहरी जिम्मेदारी है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए और फिर आपको और आगे पढ़ना है, और वो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है जब आप नाटक जैसे क्षेत्र में हो। मैं एक संक्षिप्त में यही कहूँगी कि मुझे लगता है, having done television, film, theatre, everything, having experienced audiences of television, film and theatre, that ये जो समय हमारा आ गया है जिसमें AI की बात हो रही है, रोबोज़ की बात हो रही है, हज़ारों रील्स और इंस्टाग्राम वाले स्टार्स पैदा हो चुके हैं। हाल ही में एक आत्महत्या भी अभी एक लड़की ने की क्योंकि उसके फॉलोअर्स गिर गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट her sister told her कि it's okay, this is not, and she had done her law and LLB, and she still killed herself because she did not manage to make the 1 million Instagram mark. So there is, while we can talk about progress at a very major level with technology and take maybe go to the moon, but the fact is the human being has not changed. We are as emotionally, intellectually, mentally fragile, as full of possibilities, as full of greatness, as full of vulnerabilities as we have been 5,000 years ago and even today. Even today, the human being wants and lives, उन्हीं चीज़ों के लिए जीता है, उन्हीं चीज़ों के लिए काम करता है, उन्हीं चीज़ों से दुखी होता है। और मुझे लगता है, and this is, I'm really making a prediction, mark my words, in the coming years, theatre is the only place of solace. It is going to be the only place जहाँ पे जो AI, जो हमारे जितना टेक्नोलॉजी से जो हमारा अस्तित्व कई बारी बिखर जाता है, उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी जिस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में कह रही हूँ कि जो बिखराव होता है, जैसे अगर मैंने खुद देखा अपने घर में, अगर हम 3 लोग एक कमरे में हैं तो डाइनिंग टेबल पे तो बात हुई, जैसे ही बैठे मेरी माँ पेशेंस खेल रही है, मैं कुछ और खेल रही हूँ, और उनकी जो नर्स है वो कुछ और, nobody sits and talks anymore, everyone's with their cell phones. So even in families, तो ये ही एक जगह है थिएटर की जहाँ पे हमारा बिखरा हुआ अस्तित्व फिर से कंप्लीट होगा, जुड़ेंगे हमारे टूटे हुए जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, वो यहाँ आके अपना ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट लाइक अ वेव of many pieces of us will come together and form the whole being. And that is going to be not just as a physical thing, it's going to be spiritually and emotionally. And there is lots of experience that I can talk about, but we're going to keep it short. But all I'm saying is that despite everything that is being talked about here, theatre is going to be the only place where people will come back because they need to touch base with themselves, with their deep inner self, with the sense of being completely human and being part of humanity. Thank you. Thank you. आई थिंक जैसे मिता जी ने कहा कि कितनी कमाल की बात बोली कि आजकल जो जिस तरीके से हम लोगों का ये टाइम है बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम बहुत ही जिस दौर से गुजर रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम ये वो रील्स सब वर्चुअल चीज़ें हैं। तो लेकिन इस बीच में बहुत सारे माँ बाप ने या पेरेंट्स ने या ये भी कर दिया है कि अपने बच्चों को ना लाइव चीज़ें दिखाने लगे कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप जाके लाइव चीज़ें देखो। उसका रीज़न ही मेरे ख्याल से यही है कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपके 2-3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं आपको कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जब आप लाइव चीज़ें देखते हैं तो वो जो रिकॉल वैल्यू आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाती है। मैंने जब थिएटर देखे मेरे ख्याल से 91 में 92 में जब मैं प्ले देख रहा था तो वो आज तक मुझे सीन्स याद हैं, दूसरे जो प्ले जिन लोगों के मैं प्ले देखता था। तो थिएटर जो है एक तरह से कहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट का बाप है, क्योंकि आज हम जहाँ भी बैठे हैं तो वो थिएटर की वजह से बैठे हैं। हाँ, सिनेमा में बहुत कम एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन थिएटर में बहुत आप हैमलेट भी बन जाते हैं, आप किंग लियर भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ सिनेमा में बहुत लिमिटेशन है, बहुत ही फिजिकली और ये सारी चीज़ों को ख्याल में रखा जाता है, विजुअली कैसा लगेगा, ये वो सब सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि वक्त अभी आ गया, क्योंकि एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, एज एन एक्टर भी हमारे अंदर भी सेचुरेशन पॉइंट आता है कि यार अभी बहुत मैकेनिकल सा होता जा रहा है, अब थिएटर से करें थोड़ा सा तो लाइवनेस आएगी, थोड़ा पता चलेगा। तो ये इवन बहुत सारे लोगों में भी आ गया है।
वो चाहते हैं कि अब थिएटर देखा जाए। अभी मैंने खुद देखा है कि आजकल जो थिएटर होता है, जो प्लेज होते हैं, वो हाउस पैक हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। वो शायद इसीलिए हो रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को, दोस्त यार, अब लोगों को ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है लोगों के बीच में कि देखते देखते खुद महसूस कर रहा है, मतलब पैसिव हो चुका है इंसान। तो मैं तो होपफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि थिएटर का वक्त कभी गया भी नहीं था, हम लोगों को लगता है, और ना जाएगा, और मेरे ख्याल से और अच्छे से आएगा थिएटर का टाइम, क्योंकि इस चीज़ से सब लोग बोर तो हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं ये। क्योंकि कहानी जो हम कहते हैं, कहानी जब हम, क्योंकि खुद जिंदा हैं, तो जिंदा लोगों को देखना पसंद करेंगे। तो इसलिए इसलिए जैसे नवाज, बिकॉज ही इज़ माई बैचमेट, सो आई हैव लर्नड क्वाइट अ लॉट फ्रॉम नवाज एंड स्वानंद एंड मीता मैम, हम तीनों के बैच को पढ़ाया भी है। सो ये एक अद्भुत वो है। सो जैसे उन्होंने कहा कि जो जिंदा है इंसान, वो जिंदा लोगों को देखना पसंद करेगा। जैसे जब सिनेमा आया तो थिएटर चला जाएगा, लोगों को लगा। फिर जब टीवी आया, लोगों को लगा चला जाएगा। ओटीटी आया, ओटीटी के टाइम में भी हमने अभी भारत रंग महोत्सव किया, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं एडवर्टीजमेंट कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मतलब यू शुड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ Ministry of Culture, is hosting Bharat Rang Mahotsav, which is the largest international theatre festival in the world today. And within a span of 20 days, we hosted more than 2,100 plays. It's not a joke. Human beings have been artistically intelligent. So the real AI is with us. It is artistic intelligence. And जो artistic intelligence को जब enslave करेंगे हम, ये जो नया AI को लेके, that will empower us to be absolute, to have absolute intelligence. So 3 तरह के AI चलेगा अभी, absolute intelligence, artistic intelligence and कृत्रिम। So कुछ होना नहीं है, लेकिन at the same time you have to be sensitized about your own culture. And जो नाट्य शास्त्र है, इसलिए नहीं कि हम इंडियन हैं इसलिए बोल रहे हैं, no। अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, इट इज़ अबाउट क्वांटम इमोर्टैलिटी। अब अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आत्मा है, बताइए, बहुत देर से जगे, उसको कह रहे हैं क्वांटम इमोर्टैलिटी, आत्मा है, और फिर बोल रहे हैं, सुन के आपको भगवत गीता याद आ गया कि आत्मा मरती नहीं है, क्वांटम इमोर्टैलिटी। फिर आत्मा, फिर कह रहे हैं तीसरे चरण में कि आत्मा के पास इतना पावर है कि किसी के स्वरूप ले ले। वाह भाई वाह। सो इस तरह के भूखंड में हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हर तरह के स्किन कलर्स हैं, यहाँ पे रेगिस्तान है, समंदर है, महासमंदर है, झील है, और मुंबई के नाले भी हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ भी है, सब कुछ है, और यहाँ पे नाट्य शास्त्र था। इसलिए ये जो बाप है शास्त्रों का, जिसको इक्वेट किया गया 4 वेदों के साथ, पंचम वेद कह दिया। क्यों पता हूँ आपको? क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत चतुर थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। उनको था कि जो नाटक करेगा उसको लोग यूं ही ले लेंगे, अरे यार नाटक करता है, जो आप लोग लेते हैं। तो बाद में जब हम मजबूरी से टाइपिस्ट बनना हुआ, क्योंकि सरकार चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए ब्रिटिशर्स को लगा मेरी भाषा को ये लोग जाने, तो मेन स्ट्रीम बन गया वो, और हम बन गए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविस्ट। सो मैं एक एक्स्ट्रा आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि रियल अवेकनिंग हो, लुक बैक एंड गो थ्रू आवर ओन स्क्रिप्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आवर ओन वैल्यू सिस्टम एंड पर्टिकुलर नाट्यशास्त्र। तो प्लीज़ आप लोग सब साथ दें और दुनिया को समझें, और हम नाटक करें, ना कि नौटंकी करें। क्या बात है, थैंक यू चित्ररंजन। मेरा नेक्स्ट सवाल खासकर आप लोगों से है, हम तो इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारा देश है, हम ट्रेनिंग पे आते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एंड और लोगों की इस सब की जड़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया और यहाँ तक जो जा रही है चीज़ें, इस सब की जड़ें उस ट्रेनिंग में हैं, वहाँ पे बीज डलता है। तो एक तरफ हमारे देश की वृहद फोक ट्रेडिशंस है, क्लासिकल ट्रेडिशंस है, दूसरी तरफ AI है और ऑगमेंटेड रियलिटी है, और इसके बीच में थिएटर ट्रेनिंग है। और वो थिएटर ट्रेनिंग आप किस तरह से उसके हिसाब से चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, आगे बढ़ रही है?
और एज गवर्नमेंट आपके क्या रोल्स है उसके अंदर, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो I always feel, government is a facilitator, basically. But problem क्या हो जाती है कि everybody just looks at the government. We can facilitate you till the time, जैसे कि एक बच्चा है उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद then we want that the child should be independent. So we run quite a number of schemes. We have repertory grant scheme जिसमें एक गुरु और शिष्य का होता है 3 साल से लेके 18 साल तक का, और उसमें थिएटर भी एक पोर्शन है. एंड आउट ऑफ 2000 ऑर्गेनाइजेशन विच वी सपोर्ट, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, 50% इज इन फैक्ट थिएटर ओनली. So it's the government supports, but at the same time what happens is institutions expect that we should be supported for 20, 25, 30 years. We tell them there are so many institutions in this country. If we just keep on supporting the same institution for 30 years, it is just not feasible. So एक तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट से हेल्प लें वो इसको एक फैसिलिटेटर की तरह लें कि आपको एक थोड़े दिन पे हेल्प करके पैरों पे खड़ा कर दिया, उसके बाद आगे आपको थोड़ा बहुत खुद करना है. दूसरी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो NSD, बिकॉज NSD ने इतने दिग्गज कलाकार दिए हैं. इनफैक्ट मीता जी से मैं बात कर रही थी तो शी सेड कि हर बैच is like one of the best batches, and this batch which is sitting here, so she was talking about Irfan being her batchmate and all. So NSD has, whenever you visit NSD, you see the wall like it's like who's who of theatre and cinema world. So but it gives a diploma, there is no degree. So though a person after graduation has to join NSD, but now we are trying to push that NSD should be given the status of a deemed university. And in NSD, the course content also should change a bit with the times also. So these are a few things which the government would like to take, and also open more branches of NSD. We have already opened some branches in few parts of the country, and also take it abroad. Recently, NSD had its festival in Colombo as well as Nepal. So, and as we speak, a batch of now second year students are visiting Moscow. They are taking part in the theatre festival there. So there are a lot of initiatives which the government is taking, and theatre is something which we are very, very serious about. चित्ररंजन सर. हाँ, मैं ये ट्रेनिंग की बात जो है, पहले तो नाट्यशास्त्र में है आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक. आंगिक मतलब फिजिकलिटी, फिजिकल मूवमेंट. वाचिक मतलब जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं. उसके बाद आहार्य मतलब योर मेकअप एंड कॉस्ट्यूम. That also helps to enact a particular or leave a particular part. उसके बाद फिर सात्विक, which is the finest form of acting. कोई भी वेस्टर्न थियरी आज तक इसका 5th एलिमेंट नाटक में या अभिनय में या एक्टिंग में नहीं ला पाए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने सारे कंटेम्प्रेरी थियरीज हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, इफ़ यू गो बैक टू नाट्यशास्त्र, देन यू फाइंड दैट ये एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं. टोटलिटी में होलिस्टिकली अगर कहा जाए तो दैट इज़ नाट्यशास्त्र. आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक का एक बहुत बड़ा लाइफ के साथ, लाइफ के फिलॉसफी के साथ उसका रिलेशन है. यानी कि आंगिक, जब बच्चा आप कंसीव होता है माँ के पेट में, डॉक्टर जब वो सांस लेता है तो डॉक्टर को लगता है कि हाँ बच्चा जिंदा है, तो सांस लेता है आंगिक. पैदा होने के बाद रोना शुरू कर देता है, वाचिक शुरू हो जाता है. उसके बाद आहार्य, क्योंकि पहले तो वो नेकेड थोड़ा सा रहता है, फिर आप उसको नापी पहनाते हैं, कुछ करते हैं, सो उसका आहार्य शुरू हो गया. देन सात्विक. सात्विक मतलब थपड़े खा खा के, मैनिपुलेशन सीख सीख के, प्रिटेंशन सीख सीख के उसको हम इंसान बनाते हैं. सो यही समझना है. इसको जब समझ गए तो नाटक कर लेंगे. सो ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट दिस, कि ये कोई दकियानुसी या पुरानी बात नहीं है. इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न एंड साइंटिफिक. यू हैव टू हैव आंगिक, वाचिक, आहार्य एंड सात्विक. ग्रोडोस्की, द ग्रेट ग्रोडोस्की, फिजिकल थिएटर कर रहे हैं. हम तो सब कुछ कर रहे हैं. कोई केमिकल थिएटर कर रहा है, रासायनिक प्रक्रिया ढूंढ रहा है. अब मेरे में क्या रसायन निकलेगा, इन तक जाएगा, और ये क्या रसायन निकालेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट आंगिक, वाचिक. सो अभी हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक समय पे जब 7 दिन में हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ के छोड़ देते थे, अभी हमने उसमें ये सोचा है
कि दिस थियरी और एंड वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि अभी यूएन में उसको रजिस्टर में रखा गया है. सो द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस एंड दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द वेरी फैक्ट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड नाट्यशास्त्र. ट्रेनिंग वहाँ से होना शुरू होना चाहिए. एक दूसरा, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फैकल्टी ऑफ आर्ट. 20 से 30 सीट हम साल भर में पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सिलेक्ट करते हैं. ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी बात है. बट क्योंकि घर घर नाटक है, क्योंकि पूरे समाज नाटक से भरा हुआ है, फॉर्म से भरा हुआ है, तो उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए हमने अभी 3 महीने का मॉड्यूल शुरू किया है. अलग अलग जगह कर रहे हैं. कई लोग असंतुष्ट होकर कह रहे हैं ये सब क्या हो रहा है एनएसडी में. सर एनएसडी इससे पहले भी ये करता था. वर्कशॉप बोलते थे हम उसको, एक्सटेंशन वर्कशॉप बोलते थे. जो बीवी कारंत साहब, द ग्रेट बीवी कारंत साहब, एक्चुअली जो एनएसडी की सोच में जो आज़ादी आई वो बीवी कारंत साहब के ज़रिए आई. एनएसडी में मल्टीपल फैकल्टी आया, इंटरनेशनल फैकल्टी आया. बच्चा कंफ्यूज होए सो दैट उस कंफ्यूजन से वो अपना एक स्टाइल निकाले. फोक थिएटर हो, म्यूजिकल थिएटर हो, क्लासिकल थिएटर हो, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, कंटेम्प्रेरी एट्सेट्रा, सब कारंत जी का देन है. एंड दिस एक्सटेंशन प्रोग्राम वेयर एनएसडी विजिट्स टू डिफरेंट 2 tier 3 tier cities और विलेजेस, वहाँ जाके पहले 3-3 महीने का वर्कशॉप होता था प्रोडक्शन यूनिट में. वही हम अभी कर रहे हैं. इसमें कुछ लोगों को थोड़ी लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है. हम उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नाउ अ पेड कोर्स, क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा समझते हैं. दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड इसको सीनियर सिटीजन्स को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, क्योंकि सीनियर नाट्यशास्त्र में ये नहीं कि आप नाटक करें फिल्म में जाएं. नाट्यशास्त्र में ये है कि मल्टी लेवल आपके मानस पटल पे उसका बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस रहता है, जिससे आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए या सोचने के लिए, सोच के लेवल पे ये है सही, वो मजबूर करता है. तो हमारा ये कर्तव्य है, एनएसडी का एक रोल बनता है कि हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए. दुनिया क्या है? रोल प्लेइंग है ना. रोल प्लेइंग है. जैसे मैं यहाँ बैठ के इतनी बातें कर रहा हूँ, बट जब हम एक प्रोटोकॉल के तहत मैम के साथ बात करते हैं, मैं इतना बचर बचर नहीं करता हूँ, मैं धीरे बोलता हूँ, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ रोल. नाउ आई हैव बीन आस्क्ड माय बॉस टू रिप्रेजेंट एनएसडी, सो मैं वो परमिशन के बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ. सो एवरीथिंग इज रोल प्लेइंग. तो नाटक में रोल प्लेइंग होता है. द एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट रोल प्लेइंग. सो इट इज़ अबाउट हाउ यू रिएक्ट. सो एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग. सो जो रिएक्शन की जो ट्रेनिंग है थ्रू रोल प्लेइंग जब हम करते हैं, इसका एक सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है जिसके ऊपर हम अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. जो मेथड एक्टिंग के बारे में बात हुई, उससे कहा गया कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ों के लिए आपको मजबूर करता है. सर ये पहले हो चुका है. पहले 6000 जो वर्सेस हैं, श्लोक हैं, उसमें सारी चीज़ें ये बात हुई है. तभी तो कह रहा है कि चिकित्सा भी, शिक्षा भी, एट्सेट्रा. सर सो द ट्रेनिंग इज नाउ वी हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन आवर एंटायर all the citizens. That is the aim. Ideal wishful thinking कि हम पूरे देश भर में लोगों को इसके बारे में बताएं, so that it will improve the quality of life. बाद में फिर बाकी चीज़ें. नवाज और मीता जी, जिन लोगों ने अपना मकाम नाटक के बाहर ऊपर जाके भी बना लिया है, वो लोग भी नाटक करने के लिए आ रहे हैं. तो क्या आपका ऐसा कोई प्लान है, मूड है नाटक करने का? मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाऊं? पाइपलाइन में है. पाइपलाइन में. हाँ, बट मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक्टिंग, जब सिनेमा में एक्टिंग करते 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 जब कई साल हो जाते हैं, तो तब रियलाइज़ होता है यार थोड़ा बहुत ही मैकेनिकल हो रही है ये चीज़ें. तो तब बड़ा मन करता है कि थोड़ा थिएटर किया जाए. तो ये स्थिति मेरे पास कई बार आई है कि यार या तो थोड़ा गैप ले लूँ या थिएटर करूं, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, नई चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तो इतना मॉडर्न एक्टिंग, जिसको आज की डेट में हम कह सकते हैं, इतना मॉडर्न सब कुछ लिखा है, वो आज भी रिलेवेंट है हमारे लिए. तो अगर जैसे चितरंजन कह रहे हैं कि हम नाट्यशास्त्र को आगे इस तरह लेके जाएंगे, उसकी थ्योरी को बताएंगे लोगों को मॉडर्न टाइम में कि कैसे कैसे वो आज भी रिलेवेंट है. तो थैंक यू चितरंजन. थैंक यू. वेलकम मेरे भाई.
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं इनका बैचमेट हूँ, मैं भी उधर बकवास कर सकता था, लेकिन मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। रोल प्ले। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मीता मैम। अभी जब हम सारी बातें कर रहे हैं, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र की, चित्रंजन ने बात की, नवाज ने भी बात की, आप थिएटर एक्टर प्रैक्टिशनर भी है, लेकिन यू आर ऑल्सो इनटू टीचिंग. You are also teaching in NSD right these days, like as a visiting faculty, I think. Yes, also directing. So in the day and age of 30-second Instagram reels, you know, like short attention, short times attention, उस दौर में आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है, कुछ और चीज़ें आप करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में कुछ आप बता सकती है हमको? फिर मैं चित्रंजन और मैम से भी बात करूँगा. हमारे पास टाइम है ना, काफ़ी है. इस दौर में जब अटेंशन स्पैन को बहुत कम माना गया है, मैं ट्रेनिंग प्रोसेस को और डिफ़िकल्ट कर देती हूँ. In fact, I go back very much deeply further into the fundamentals. It's very important to do that because जो fundamentals हैं, जो बनाए गए हैं नाट्य शास्त्र में, वो ऐसे ही नहीं बने थे, बल्कि अभी जब नवाजुद्दीन जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो रस थ्योरी है, रस जिसे कहते हैं. एंड वी आर दी ओनली एस्थेटिक्स विच बिलीव्स इन द रस थ्योरी. इसका जो आंगिक वाचक आहार्य सात्विक है, वो इतना साइंटिफिक है कि इमोशन, ब्रेथ और बॉडी का क्या रिलेशनशिप है. जैसे अभी अगर मैं आप सबको कहूँ कि आप फ्रीज़ हो जाइए और आप देखिए कि आप लोग कैसे बैठे हैं, तो अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये मोटिवेशन है. लेकिन आप में से एक भी इंसान एक जैसा नहीं बैठा है. आपका आंगिक हर एक का अलग है, बहुत अलग है. You know, so this is the kind of individuation that the actor's craft does, और ये सब कुछ नाट्य शास्त्र में है. और इस प्रकार की इंडिविजुएशन में जब कोई स्टूडेंट एक्टर उतरता है तो वो अपने से इतना करीब आ जाता है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें जो उसको परेशान कर रही थी उसके निजी जीवन में, वो ख़त्म हो जाती हैं. So the craft of the actor is a fantastic craft, and while I totally agree that we are playing roles, but I'll tell you a very quick incident. कुछ समय पहले मुझे फैमिली वेडिंग में जाना था, तो वहाँ पे कितने लोग होते हैं, सेल्फी, तो हर सेल्फी में मैं स्माइल कर दूँ. ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए एक सेल्फी है, मेरे लिए 50 है, लेकिन घर ले जाके मैं मेरा ऐसा मुँह थोबड़ा तो नहीं देख सकते. सो आई हैव टू स्माइल. सो वन ऑफ माई रिलेटिव्स वर देयर, ही सेइंग तुम कितना स्माइल करती हो. मैंने कहा हाँ, तुम्हारा मुंह नहीं दुख रहा है. मैंने कहा हाँ दुख रहा है. कहते तो फेक स्माइल कर करके दुखता नहीं. मैंने कहा उनके लिए तो एक फ़ोटो है. तो कहते तुम एक्टर लोग सच कब बोलते हो. तो मैंने कहा जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं. वाह वाह वाह, क्या बात है. That is the only place where you tell the truth like it is. The deepest truths which we do not tell our parents, which parents and husband wife will not tell each other, which best friends will not tell each other, which lovers will not tell each other. आप जो सच कभी किसी से नहीं बताते, खुद से शायद ना बताएं. और मेरे जो गुरु थे प्रोफेसर मोहन महर्षि, उन्होंने हमें बहुत पहले ही कह दिया था जब हम NSD में आने से पहले कि अगर तुम एक महान एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा. और उस ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कल क्या किया और क्या नहीं किया. नो, इट मीन कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर का आपका शीशा साफ होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को क्लियरली देख सको. तो जो इंसान अपने आप को हमेशा क्लियरली देख पाता है वो ही एक्टर अच्छा बन पाता है. एंड दैट इज़ अ फैक्ट. I have seen that happen. So everyone who is a great actor here is bound to a deeply honest person inside. They will not hide from themselves. And we are the people जिनके ज़रिए आप अपने सच से जुड़ते हैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सच आपके अंदर बहुत कुछ खोल देता है. आपका जीवन भी बदल सकता है उससे, होता ही है. And actors are the people who we tell the truth when we are acting. That's the place. The whole truth. थैंक यू. अगेन मैं एक सवाल फिर से मैम भी कह रही है मुझे पूछने के लिए, और वो फोक थिएटर पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ. फोक थिएटर पे आप लोगों का मतलब, जैसे एक आज हम मॉडर्न डे में थिएटर कर रहे हैं और सिनेमा करते हैं, मुझे लगता है सिनेमा टुडेज फोक आर्ट है, लोक कला है. और चंदा मामा की कहानी और हमारी लोक कलाएं,
इन लोक कलाओं का और आज की लोक कला, इसके बीच में कोई रिलेशन और आपका एक्सपीरियंस इंडियन फोक थिएटर के साथ में, मीता मैम, मतलब नवाज सर और चित्ररंजन सर? मेरे पिताजी हरियाणा से थे, सो जब मैं बड़ी हो रही थी और वो फौजी थे, तो हमने भाषा मैंने तो ठीक से नहीं सीखी, बट आई थिंक फोक जो है, और हम लोग सब हम शायद शहरों में पैदा हुए बड़े पले, लेकिन हमारे परिवार में हमारा जो डीएनए है वो मिट्टी से माने फोक से जुड़ा हुआ है, यू नो. So that is why when at the end of the day if you return to the folk theatre, even as audiences, there is always a connect which you may not be able to explain, but जो आपको nurture करता है. और ये कितनी कमाल की बात है. मैं कई बारी पर्सनल एग्जांपल्स देती हूँ क्योंकि वो संक्षिप्त में बात हो जाती है. मेरी जब बुआ जी थी जो 93 की थी, वो जब गुजरने लगी तो उन्होंने अचानक एक गाना शुरू कर दिया जो मैंने कभी सुना ही नहीं था उनके मुंह से. वो गाती थी, जैसी तेरी पगिया मई का लाल रंगा दे रे, और वो मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ती थी यूँ, क्योंकि वो उनको चाहिए था, और ज़ोर से उनकी उंगली का ऐसा चलता था बीट, जैसी तेरी पगिया मई का, छोटी सी पतली सी आवाज़ में गाती थी. मैंने कहा ये क्या गाना है. उनके बचपन का, जब वो गुजरने वाली थी तो उनके जब वो छोटी सी लड़की होती थी हरियाणा के गांव में, तो वो गाना जैसी तोरी पगिया मई का लाल, मतलब मेरी माँ के लाल, मतलब मेरे भाई, मुझे भी ऐसी मंगवा दे चुनरिया और उसी तरह रंगा दे जैसे तेरी पगड़ी है. एंड आई कुडंट बिलीव इट दैट अ पर्सन who is on her deathbed is singing a folk song from her childhood. I think folk has the fragrance of your childhood, जहाँ पे आप पैदा हुए, जो आप, that is why there's a strange pull. You may not be able to understand it if you've grown up in the urban space, but it's in your DNA. It's the stories that your grandparents tell you, your parents tell you, it's the taste of food. So folk traditions are actually the five senses in the form of song, dance, and storytelling. They are the five senses. They evoke your five senses. And therefore, my desire, even today as an urban actress maybe, the minute I engage with any folk, even with Terukuttu, and it's amazing that हमारे NSD के अभी जो students pass out हुए, उन्होंने 3 हफ्ते की वर्कशॉप में तमिल में तेरुकुट्टू का एक परफॉर्मेंस किया, and which is going all over the world and everyone understands it. They don't understand the language. और इस पे मैं थोड़ा They 2 love लाइन it. जोड़ दूं कि मिनी इंडिया होता है NSD, क्योंकि हर एक जगह से लोग आते हैं, बट स्टिल तमिल बोल के उन्होंने किया. और मॉस्को में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में गए थे ये लोग, जहां हमने सबटाइटल भी नहीं रखा था, एंड दे गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 7 minutes. So that is the power of Indian theatre. Yes. And folk कहें या traditional कहें, that is the real power of Indian theatre. You know, so it is there. You may not, I mean, and even if you see something as powerful as ये जो चल रहा है आपका NCA में जो मुगल आजम चल रहा है, उसमें सबसे exciting moment कब है? जब वो 50 dancers कथक कर रहे हैं. When they come to the sum, you know, now you'll say it's a classic, but it's not. It has started from the root. There were many kinds of Kathak grown in different soils. Folk tradition, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, नाट्य शास्त्र इसलिए और हमारा जो ट्रेडिशन इतना इम्पोर्टेंट है वो क्योंकि हमारे जितने ट्रेडिशंस हैं, whether they are of Ayurveda, whether they are of weaving, printing, even yoga, medicine, everything has come from the rural areas. अर्बन स्पेसेस ने कुछ नया और कुछ ग्रैंड उस तरह से नहीं बनाया है. अगर हमारा जो आयुर्वेद है वो भी रूरल एरिया से आया है, हमारा जो वीविंग का ट्रेडिशन है वो वहाँ से आया है, जो फोक ट्रेडिशंस है वो मिट्टी से निकलते हैं और वो खुशबू आपके डीएनए में है. यू नो, सो देयर इज़ नो, सो अ फोक ट्रेडिशन इज़ अंडरस्टूड बाय एवरीवन, एंड आई थिंक मोर एंड मोर. और NSD ही एक जगह है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स तमिल जिन्होंने कभी नहीं सीखी, और हमने भी जब हम स्टूडेंट थे मणिपुरी लैंग्वेज में हमने प्ले किया था अभिज्ञान शाकुंतलम और मणिपुरी फोक फॉर्म सीखा था. एंड इट्स एन अमेजिंग सेंस ऑफ इंटीग्रेशन विद द होल कंट्री when a batch of students learns a particular folk form.
And the great thing about the Natya Shastra and the training process with the Natya Shastra, as opposed to Grotowski's Theatre of Cruelty, and this somebody told me was कि हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो चक्रव्यूह की तरह है जिसमें आपको जाने का रास्ता बताया जाता है और बाहर निकलने का रास्ता भी बताया जाता है. The Natya Shastra is a very scientific method and definitely folk is very much part of our DNA. जब मैंने देखना शुरू किया उन फॉर्म्स को देखना, फोक फॉर्म्स को देखना या ट्रेडिशनल फॉर्म्स को देखना शुरू, तब मेरा लगा कि यार ये कमाल की चीज़ें हैं, इतनी कमाल की चीज़ें जिनसे हमें हमेशा दूर रखा गया. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हम बचा सकते हैं बचाना चाहिए. और मैं भी शायद मुझे लगता है कि चित्ररंजन और आप बड़ा इसके पीछे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हो सके हम लोग तो सपोर्ट ही कर सकते हैं. और क्या है. I'd just like to add to that because वैसे अगर आप देखें तो थिएटर और फोक इतना ज़्यादा उसका गहरा कनेक्शन है और सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जांपल उसका है रामलीला. और थ्रू आउट द कंट्री हर स्टेट में किसी ना किसी फॉर्म में रामलीला होती है, हर डिफरेंट डिश में. रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ने एक किया है, वाल्मीकि रामायण सबने सुनी है, रामचरितमानस सबने सुनी है, बट जो और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रामायण है, जैसे कम रामायण, आपकी तमिल की जो रामायण है, उसको मंडलीज वो बेसिकली परफॉर्म नहीं करती, वो गाती हैं उसको. और अभी हम लोगों ने पीछे एक फेस्टिवल किया था, हम लोगों ने 50 मंडलीज आइडेंटिफाई की जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही थी और जो कम रामायण गाने का ट्रेडिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, उसको हम लोगों ने फिर से रिवाइव किया है, विच इज़ लाइक अ फोक, और उसमें शैडो पपेट्री को के साथ मिला के, विच इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ थिएटर. सो मिनिस्ट्री इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड थिएटर में कंटेम्प्रेरी थिएटर के साथ साथ देयर इज़ लॉट ऑफ वैनिशिंग आर्ट form of folk theatre. So in fact we would request the alumni of NSD also to, we will need their support whenever, because see to pull the crowd you need some magnet. So so sometimes you do require people, and if and when you are able to nurture the folk theatre, the traditional theatre, the contemporary theatre, then only theatre will survive in the coming days, and especially the theatre space for performing. So all the Rabindra Shalas, the Rabindra Bhavans which you see are all funded partly by Ministry of Culture with the state governments, and we are continuing to do that. So theatre is something which the ministry is very, very serious about, and all the support which we can give, we will try to give. Thank you so much.